उनका शरीर कमजोर हो जाता है। And we stand for our brothers and sisters at that time. उस समय में हम अपने भाई बहनों के लिए खड़े But हैं। if you have strength, maybe little strength, अगर आप में बल है, चाहे थोड़ा बल क्यों ना हो, use it against Satan. शैतान के विरुद्ध उसका इस्तेमाल करो। Okay? One thing that I forgot, I want to add this here in submission to God. One thing that the church has not learned over the years is true worship. एक चीज जो कलीसिया ने इतने सालों में नहीं सीखी है वो है सच्ची आराधना। Because we have reduced worship to singing songs. क्योंकि हमने आराधना को गाने गाना समझ लिया। And even though worship, singing songs is an expression of worship, और हालांकि गाने गाना आराधना का एक स्वरूप है, it's not the full expression of worship. वो उसका संपूर्ण प्रभाव, उसका स्वरूप नहीं है। हम सबको सच्ची आराधना करना सीखना है. We all must learn to truly worship. And I'm telling you, if you are a worshipper, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एक आराधक हो, the Father is seeking you. तो पिता आपको ढूंढ रहा है। Jesus said that. यीशु ने कहा, You will have favor upon favor upon favor. आपकी जिंदगी में तरफदारी पर तरफदारी पर तरफदारी होगी। पर पास्टर मैं कैसे आराधना करूं? मैं गाता हूं, मैं गाती हूं तो ऐसा लगता है मेढक टटर आ रहा है. But pastor, I don't know how to sing. I sing very off. Okay. Lift up your hands right now. अपने हाथों को उठाएं। You know what true worship looks like? आप जानते हैं सच्ची आराधना कैसी दिखती है? Thank you, Father. धन्यवाद पिता। I bless your name. मैं आपके नाम को धन्यवाद। Blessed be the name of Jesus. यीशु के नाम को I धन्यवाद। worship you, Lord. मैं आपकी आराधना करता I magnify you. हूं। मैं आपके नाम I को glorify you. आपकी Because महिमा you करता are so good. हूं। क्योंकि आप इतने Thank भले you हैं। for loving me, Daddy. धन्यवाद पिता मुझसे Thank you प्यार for करते हैं। loving me with an everlasting love. धन्यवाद उस I अनंत के प्रेम से worship मुझसे you, प्यार करते Lord. हैं। मैं आपकी आराधना Thank you, करता हूं। Jesus, for loving me. धन्यवाद Thank यीशु you, मुझसे प्यार Jesus, करने for के लिए। redeeming me. धन्यवाद Thank you, यीशु मुझे छुड़ाने Jesus, के for लिए। healing me. धन्यवाद यीशु You मुझे- are my Savior. आप You मेरे are छुटकारा my हो। Redeemer. आप मेरे I छुटकारे will हो। serve no one मैं और else. किसी की सेवा All नहीं the days of my करूंगा। मैं life, जिंदगी भर I आपकी will सेवा live for करूंगा। you, यीशु Jesus. मैं आपके लिए जीऊंगा। Thank you for your love. धन्यवाद I आपके bless लिए। your मैं name. आपके नाम को I love you, यीशु मैं आपसे Jesus. प्यार करता हूं। Jesus, you are my God. आप मेरे I परमेश्वर will हो। serve no one और else. किसी की सेवा नहीं Jesus, यीशु। I call on your beautiful मैं name. आपके खूबसूरत नाम को पुकारता हूँ। Hallelujah. Hallelujah. That is what worship is. ये है जो आराधना है। You don't have to have an instrument. इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। Your hands become the instrument. आपके हाथ वो इंस्ट्रूमेंट And with the gratefulness of your heart, you just pour out your heart before your Father. और अपने दिल की धन्यवादिता से आप अपने पिता के लिए उंडेलने लगते हो आराधना। Get up in the morning and worship Him. सुबह उठो उसकी आराधना करो। When you are working, you have a break. जब Worship काम कर रहे Him. हो, ब्रेक मिला है, उसकी आराधना करो। Lift up your hands. अपने हाथों को उठा लो उससे। आप जा रहे हो ऑफिस कॉरिडोर में, थैंक यू जीसस, लोग आ रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर रहे हो? कह रहा हाँ, You walking in Exercise the कर रहा office corridor with your hands lifted स्पिरिचुअल up. एक्सरसाइज. You can tell people you're doing spiritual exercise. This worship is powerful. ये आराधना शक्तिशाली है। This worship is so powerful. ये आराधना बहुत शक्तिशाली है। Because it's not the lyrics you read from the screen. It is not coming out from your head. It's coming out from the depth of your heart. क्योंकि आप पढ़ के स्क्रीन से लिरिक्स नहीं बोल रहे हो, आपके दिमाग से नहीं है, लेकिन आपके दिल की गहराई से आ रही है। Okay, sit down. Once, a young boy of 10 years, his mother died of cancer when he was 10 years old. एक 10 साल का लड़का, उसकी मम्मी की कैंसर से डेथ हो गई जब वो छोटा ही था, 10 साल का था। And he cried for 4 years every day. वो 4 साल तक हर दिन रोया उस Every day. हर दिन। Whenever he will hear a song in radio about mother, he will run to his backyard and cry and cry and cry. जब कभी वो रेडियो पे कोई गाना सुनता जो माँ के बारे में होता, वो बैकयार्ड में जाके रोता और रोता। 4 years. 4 साल। And later that boy
became one of an amazing man of God who healed millions all around the world. और बाद में वही व्यक्ति वो महान परमेश्वर के जन बने जिन्होंने लाखों लोग को चंगा किया। बाद में But he one day was praying and he said, Lord, why did you let my mom die? लेकिन एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे, उन्होंने कहा प्रभु आपने क्यों मेरी माँ को मरने दिया? And the Lord spoke to me and he said, Son, I had nothing to do with the death of your mom. प्रभु ने उनसे बात की और कहा बेटा मेरा तेरी माँ की मृत्यु से कोई लेना देना नहीं था। But she used to go to a church that failed to teach her that as I am a savior, I am also a healer. लेकिन वो एक ऐसी चर्च जा रही थी जो उनको ये सिखाना चूक गए कि जैसे मैं उद्धार करता हूँ वैसे ही मैं चंगा करता भी हूँ। My people perish because they have no knowledge. मेरे लोग इसलिए नाश होते हैं कि उनको ज्ञान की कमी है। Amen. If you are sick, अगर कोई बीमार है call on to his office of a healer. उसके उस दफ्तर को पुकारे जो चंगा करता Say, है। Jesus, कहें यीशु you are my healer. तू मेरा चंगा You करता are है। my Jehovah Rapha. तू मेरा यहोवा You are राफा my है। doctor. तू मेरा डॉक्टर Jesus, है। यीशु you are my तू healer. मेरा चंगा You करता are है। my healer. तू मेरा चंगा करता है। Jesus, यीशु there is no sickness that you cannot heal. कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसको आप चंगा नहीं कर Jesus, you सकते। bore stripes on your back. यीशु आपने मेरी For my मेरी चंगाई के लिए healing. अपनी पीठ पे कोड़े खाए। Jesus, यीशु you are my healer. आप मेरे चंगा करता हो। Jesus, यीशु you are my healer. आप मेरे चंगा करता हो। Jesus, यीशु you are my healer. आप मेरे चंगा करता हो। You have to become an unashamed worshipper of the Lord. आपको एक ऐसा आराधक बनना होगा जो शर्मिंदा ना होगा परमेश्वर के लिए। वरना तरस अपने आप में खाते खाते मर जाओगे बीमारी में। Otherwise you will die in your own pity in that sickness. That's our first call to worship Him, ये to हमारी love Him, to adore Him, to पहली glorify Him. बुलाहट है, ये उसकी महिमा करना, उसकी आराधना करना, उसको सराहना। Amen. Sometimes we are so consumed with our needs कई बार अपनी जरूरतों में हम इतना खो that जाते when हैं। we go to Him, we don't adore Him first. We tell Him what we want. जब उसके पास जाते हैं तो उसको सराहना भूल जाते हैं, उसको पहले बताते हैं हमें क्या चाहिए। I love this story where this leper goes to Jesus and the Bible says he fell down at His feet and he worshipped Him. मुझे प्यार है इस कहानी से जहाँ बाइबल बताती है यीशु के सामने एक कोढ़ी आया जो उसके पाँव में गिरकर उसकी आराधना करने लग गया। When you call Him as a healer, जब- His healing power will come. जब आप उसको एक चंगा कर्ता की तरह बुलाओगे तो उसकी चंगाई का सामर्थ्य आपके जीवन पे आएगा। When you call Him as a savior, His saving power will come. जब एक उद्धार कर्ता की तरह बुलाओगे उसका उद्धार करने का सामर्थ्य आपके लिए आएगा। Amen. Oh, Pastor, but I have told there are 40 people praying for me. ओ पास्टर मैंने बताया 40 लोग कर रहे हैं प्रार्थना मेरे लिए। What are you doing? आप क्या कर रहे हो? I don't know if those 40 people are believing, but you believe for yourself. मुझे नहीं पता वो 40 लोग विश्वास कर रहे हैं आपके लिए नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप विश्वास करो अपने लिए। It's good that people are praying for you, अच्छी बात है अगर लोग आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, but you need to reach to a place where you tell Jesus, Jesus, you are the healer of the entire world, but you are my personal doctor. But- you are my doctor. You are my Jehovah Rapha. You are my healer, Jesus. Jesus, you are my healer. Jesus, you are my savior. You are my healer, Jesus. You are my Jehovah Rapha, Jesus. आपको उस जगह आ जाना है जहां आप यीशु से कहो यीशु आप मेरे चंगा करता हो, आप मेरे डॉक्टर हो, आप मेरे यहोवा राफा हो, आप मुझे चंगा करने वाले परमेश्वर हो। Amen, church. I'm giving you no false hopes. मैं झूठी उम्मीदें नहीं दे रहा हूं आपको। If you don't learn to resist the devil, he will not flee. अगर शैतान का सामना करना नहीं सीखोगे वो छोड़ के नहीं भागेगा। It's clear.
सीधी बात। and God will not resist him for you. और परमेश्वर उसका विरोध नहीं करेगा आपके। There is no scripture in the New Testament where Bible says God will resist devil for you. नई वाचा में कोई भी एक ऐसा वचन नहीं है जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर आपके लिए विरोध करेगा। You will have to learn to resist him. आपको सीखना होगा उसका सामना करना। और मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात को सुनना। शैतान इतना ताकतवर नहीं, केवल ढीठ है, ढीठ। And I want to tell you one thing today, hear carefully. Devil is not powerful, he is just stubborn. He is not unstoppable, he is only unresisted. वो ऐसा नहीं है जिसको रोका नहीं जा सकता, उसका बस किसी ने सामना नहीं किया अभी तक। जिस जगह आप उसका सामना नहीं करोगे वो आपको परेशान करता रहेगा। Any area where you don't resist him, he will keep on troubling you. Amen. You will have to come to a place where you are absolutely sure that Jesus has given you authority over devil. आपको उस जगह आ जाना होगा जहां आपको निश्चित पता है कि यीशु ने आपको अधिकार दिया है शैतान के ऊपर। So when you are worshiping, Jesus, you are my healer. Jesus, you are my healer. Then you turn back and you say, devil, now in the name of Jesus, take your dirty hands off me now. तो जब आप आराधना कर रहे थे, यीशु आप मेरा चंगा करता हो, यीशु आप मेरा चंगा करता हो, फिर घूमो और शैतान का सामना करो, उसे डांटो, शैतान अपने गंदे हाथ मेरी जिंदगी से हटा यीशु के नाम में। Amen. जिनके पास अधिकार होता है उनको तरस की जरूरत नहीं है। Those who have authority do not need pity. अपने पड़ोसी को बोलो, आपको तरस नहीं चाहिए, Tell your neighbor you don't need sympathy. आपके पास अधिकार है। You have authority. And don't walk by what you see. जो देखते हो उसके द्वारा मत चलो। You have a tumor, कोई ट्यूमर है किसी को, you start speaking to that tumor. उससे बोलना शुरू किया। यीशु के नाम में शैतान अपने घृणित हाथ हटा मेरे शरीर से। In Jesus name, devil, take off your filthy hands from my body. जैसे यीशु ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, वैसे ही मैं इस ट्यूमर को श्राप देता हूं, जड़ से सूख यीशु के नाम में। As Jesus cursed the fig tree, I curse this tumor. Die from the roots in Jesus name. Amen. And then you do it again. फिर आप दोबारा करते हैं, You worship the Lord. प्रभु की आराधना करते हैं, You submit to God. परमेश्वर को You अधीन करते हैं, resist the devil. शैतान का सामना करते हैं। You wicked spirit of cancer, दुष्ट कैंसर की दुष्ट आत्मा, leave my body now in Jesus. छोड़ मेरे शरीर को भी यीशु के नाम। Speak to cancer. बोले कैंसर से, Speak to sickness. बोले बीमारियों से, Because sicknesses have ears. क्योंकि बीमारियों के भी कान हैं। यीशु ने बुखार को डांटा। Jesus rebuked the fever. उसने नहीं कहा पतरस तेरी सास को बीमार है, बर्फ की ठंडी पट्टी ला। उसने बुखार को डांटा। Jesus rebuked the fever. बुखार की ठंडी पट्टी ले आओ, उसके अगेंस्ट नहीं हूं मैं कह रहा हूं डांटो। I am saying rebuke the sicknesses. Amen. Tell him, you foul spirit of sickness, leave my body now in Jesus उससे name. कहो बीमारी की गंदी आत्मा छोड़ मेरे शरीर को भी यीशु के नाम में। एक दिन हो गया, One day passed दो by, दिन हो गया, 2 days passed by, तीसरे दिन, third day. give me a chair, give me a chair. Yeah, give me a chair. Hallelujah. पड़ोसी को बोलो, गिव अप नहीं करना है। Tell your neighbor, do not give up. अगर बॉर्डर में एक सैनिक गिव अप कर दे, उसका काम खत्म है। If a soldier gives up when he's on the border, it's over. आपको वचन ने क्या बोला है? अगर आप उसका सामना करोगे तो क्या होगा? ये he will flee, ये श्योर है वो भागेगा, मगर एक समय है जब आपको डट कर खड़े रहना है। The word has told you that the devil will flee, वो छोड़ के भागेगा, but there's a time when you have to keep on resisting him. Okay? आप बोल रहे हो कैंसर, You're saying cancer, AIDS, हार्ट प्रॉब्लम, दिल की बीमारी, एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, one वही day, 2 लक्षण days, है, same symptoms. कुछ नहीं बदल रहा। Nothing has changed. हम आंखों देखे पे नहीं जाते, We don't walk by what we see. अड़िग हो जाओ। We step कई fast. बारी
शैतान को ऊंचा सुनाई देता है, Many times the devil hears a तो little आप high. ऊंचे में चढ़ जाओ, So climb up बोलो higher. शैतान Tell him, devil, यीशु के नाम में in Jesus' name, छोड़ मेरे शरीर को, leave my body. सारे लक्षण उखाड़ मेरे शरीर से यीशु के नाम में। All the symptoms, leave my body in Jesus' name. He will flee from you. और वो आपको छोड़ के भागेगा ही. उसे भागना पड़ेगा, He will have to run away. उसे भागना पड़ेगा। He will have to run away. No sickness can cut short your life in Jesus' name. कोई बीमारी आपकी जिंदगी को छोटा नहीं कर सकती. I यीशु के declare नाम as a man appointed over this house, no sickness will cut short your life in the name of Jesus. में. इस घर पर नियुक्त किए गए जन के रूप में मैं ये घोषणा करता हूँ, कोई बीमारी आपकी जिंदगी को छोटा नहीं कर पाएगी यीशु के नाम पे. Amen. Hallelujah. वो लक्षण दे सकता है, He can try and give us some symptom. but symptom is not sickness. लेकिन लक्षण बीमारी नहीं होता. He will give you lying symptoms. वो आपको झूठ बोलने वाले लक्षण दे सकता है. Amen. You will have. आप जानते हैं जो शब्द लिखा है resist the devil, यूनानी शब्द ये ऐसा है, जब एक सैनिक युद्ध में जाता है तो पूरा आर्मर पहनता है, जो आपने एफिशिएंस 6 में भी देखा. बाइबल कह रही है आर्मर पहन लिया ना तो फिर बाहर गिल्ली डंडा नहीं खेल सकते, मूवी देखने नहीं जा रहे हो. आर्मर पहन दिया तो इंटेंस बैटल में जा रहे हो. बाइबल कहती है वो कवच पहन लो और लड़ाई पे जाओ, शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे में से भाग जाएगा. The Bible, when it says resist the devil, it is like when a soldier puts on the whole armor. Like in Ephesians 6, it says put on the whole armor. When you have put on the armor, go for the battle and resist the devil and he will run away from you. पर पास्टर जी हम प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर जी. Oh, but Pastor ji, we are praying. बोला Pastor परमेश्वर ने प्रार्थना करो यहाँ पे. ji. Did God tell you to pray here? What did he tell you? क्या बोला उसने? He said resist the devil. उसने कहा शैतान का सामना करो. Speak to your mountain. अपने पहाड़ को बोलो. Speak to your cancer. अपने कैंसर को Speak बोलो. to arthritis. उस गठिए के रोग को Speak to बोलो. heart problem. दिल की बीमारी को Speak to बोलो. kidney problem. किडनी की बीमारी को बोलो. Speak to varicose veins. वेरिकोस वेन्स को बोलो. Whatever is bothering you, जो कुछ आपको सता रहा है, you speak to it. उससे बात करो. Amen. Amen. Get up in the morning. सुबह उठो. Lift up your hands. अपने हाथों को उठाओ. Thank you, Lord Jesus. धन्यवाद प्रभु यीशु. I worship you. मैं आपकी आराधना You करता are my God. हूं. आप मेरे परमेश्वर हो. You are my Savior. आप मेरे उद्धार You are my आप healer. मेरे चंगा You करता are हो. my Redeemer. आप मेरे छुटकारा Thank देने you, वाले. Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. धन्यवाद You यीशु. are a faithful आप God. विश्वास योग्य You परमेश्वर are हो. a faithful God. आप विश्वास योग्य परमेश्वर हो. Does the Bible say pray to God to heal you in the new covenant? क्या बाइबल ये कह रही है नई वाचा में कि परमेश्वर से प्रार्थना करो कि वो आपको चंगा करे? Because He has already healed you. क्योंकि वो पहले ही आपको चंगा Hear कर this. चुका है. सुनिए, We are not sick trying to get healed. We are the healed. We are resisting every symptom that devil is putting on our body. इस बात को समझो कि हम वो बीमार लोग नहीं जो चंगा होने की कोशिश कर रहे हैं. हम वो चंगे किए गए लोग हैं जो शैतान का सामना कर रहे हैं, जो हमारे खिलाफ लक्षण लेके आता है. Amen. And we all have been guilty of it, but I'm telling you, और हम सब ने ये गलती की है, जितना तो मैं बता रहा आप गूगल करते हो अपने लक्षणों को, अगर उतना आप वचन ढूंढते अपने लक्षणों के लिए, तो वो लक्षण भाग जाएंगे आपसे. हूं. As much as you Google for your symptoms, if you looked for them in the word, those symptoms would have left you. Because devil is using Google. क्योंकि शैतान गूगल का इस्तेमाल कर रहा छोटी फुंसी को भी कैंसर बताएगा. है. He will tell even a small pimple that it's cancer. And if you are so simple, you'll I think ये है. No. That's why, church, I'm telling you. इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ चर्च, This word, ये जो वचन है, hear this. Okay, सुनिए. sit down. I want to tell you something. एक चीज जो हम सबको डेवलप करनी है, मुझको, आपको, हम सबको, वो है tenacity against devil. one thing that we need to develop against the devil is tenacity against him. Sometimes we are too soft.
कई बार हम बहुत कोमलता से बोलते हैं. One time the Lord told me, He said, son, I have no problem with your yes. एक बार परमेश्वर ने मुझसे कहा, बेटा मुझे तेरी हाँ से कोई दिक्कत I नहीं. tell you something and you do it. Your yes is strong, मैं तुम्हें कुछ कहता हूँ, तुम कर देते हो, तुम्हारी हाँ मजबूत है, but your no is weak. लेकिन तुम्हारी ना कमजोर है. Our no should be as strong as our yes. हमारी ना उतनी ही मजबूत होनी चाहिए जितनी हमारी हाँ मजबूत. When a symptom comes, जब एक लक्षण आए, say no, Satan. बोलो नहीं I शैतान, am not allowing this symptom in my body in Jesus' name. मैं इस लक्षण को अपने शरीर में जगह नहीं दूंगा यीशु के नाम में. If you allow the symptom to linger, devil only has one agenda: to steal, to kill and to destroy. क्योंकि अगर आपने उस लक्षण को बने रहने के लिए समय दे दिया तो शैतान की एक ही योजना है, चोरी करना, हत्या करना, नाश करना. So many cases we hear of people, बुखार आया, केवल बुखार था, पास्टर जी हम डॉक्टर के पास गए, पता चला कैंसर है. वो बुखार नॉक था, वो उस बुखार को अगर उसी समय भगा देते तो आगे कुछ नहीं बनता. जब शैतान आए लक्षण के साथ, खड़े हो जाओ अपने अधिकार में और उसको बोलो, नहीं शैतान, तेरे पास कोई अधिकार नहीं है मुझे छूने का. When the devil comes against you with a symptom, stand against him right there and right then and say, no devil, you have no authority to touch me in Jesus' name. चाहे आपको पूरे दिन में कुछ घंटे अलग करने पड़े, Even if you have to separate some hours in your day, उसको करो. do it. मैं परमेश्वर की आराधना करूंगा. I will worship the Lord. मैं आपको क्या बता रहा हूं, What am I telling you? ये जो वचन है ना, This ये एक word रिलीजियस किताब नहीं है. is not a religious book. ओके, क्योंकि बिना, अच्छा, लेट्स गो टू फर्स्ट Peter 5:8. I want to show you something. पहला पत्रस 5. First Peter 5:8. Are we learning something, church? कुछ सीख रहे हैं? First Peter 5:8. पहला पत्रस 5:8. Be sober, be vigilant. सचेत रहो और जागते रहो. Vigilant कौन होता है? जो बॉर्डर पे सैनिक होता है ना, वो विजिलेंट होता है. A soldier who's at the border, he has to be vigilant. Bible tells us, the New Testament Bible tells us to be sober. अगर परमेश्वर, अगर हम नहीं दे सकते जगह शैतान को, तो फिर बाइबल को नहीं बोलने की जरूरत थी कि सोबर और विजिलेंट रहो. If we could not give any place to the devil, the Bible had no need to say. The Bible tells us in New Covenant, do not give place to Satan. That means we can give him place in our life, in our mind, to afflict us, our flesh. बाइबल हमसे कहती है कि शैतान को जगह मत दो अपने जीवन पे, शरीर में. इसका मतलब हम जगह दे सकते हैं अपने दिमाग में, अपने जीवन में, अपने शरीर में. Amen. Be sober, be vigilant, because your adversary, क्या? Your adversary. सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी, Not just God's adversary. सिर्फ परमेश्वर का विरोधी नहीं है वो. He is not just God's enemy. वो केवल परमेश्वर का दुश्मन नहीं He's है, your enemy. वो आपका भी दुश्मन है. He studies you. वो आपको पढ़ता है. He just have one. He will not have mercy on you. और वो दया नहीं दिखाएगा आप पे. He has no mercy. उसमें दया नहीं है. He just wants to kill you. वो मारना चाहता है आपको. Satan doesn't show mercy to few months kids. शैतान कुछ महीने के बच्चों पे दया नहीं दिखाता. He is a twisted fellow. वो एक भ्रष्ट प्राणी है. You cannot be soft and deal with him. आप नम्र होकर, सॉफ्ट होकर नहीं डील कर सकते उसके साथ. You have to use authority. अधिकार इस्तेमाल करना होगा आपको. You have to use authority. अधिकार का इस्तेमाल करना होगा आपको. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, walks about like a roaring lion. सचेत रहो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान, Seeking whom he may devour. इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए. वो खोज रहा है. He is looking. हाँ, in the book of Job, he tells God, मैं ऐसे ही घूम रहा था, आवारा है वो, मैं घूम रहा था आगे पीछे. अय्यूब की पुस्तक में he says I was just roaming around here and there. अभी भी यही करता है. He still does the same thing.
क्या बोलते हैं पंजाबी में, गेड़ी मारता है, हाँ गेड़ी, वो गेड़ी मारता रहता है ऐसे। He just keeps roaming around. हाँ तो वो जा रहे हैं, हाँ चला गया रजौरी गार्डन, कीर्ति नगर, सुभाष नगर, छतरपुर, वो देख रहा है घरों के बाहर जा रहे He's हैं। going अब एक घर के बाहर आवाज आ रही है, अरे परमेश्वर क्या किया तूने, फिर मिल गया आज का मेरा शिकार। And outside your house, he can hear you grumbling. He says, I found my. फिर एक घर के पास गया, वहां आवाज आ रही है, प्रभु यीशु मसीह आप मेरे, वगैरह भैया ये। And he goes to another house and then he's hearing praises for God. He said, no, not here. He is seeking whom he may devour. वो ढूंढ रहा है किसको फाड़। इसका मतलब he cannot devour anyone that he wants. इसका मतलब अपनी मन मर्जी से नहीं फाड़ खा सकता किसी को वो। कुछ लोग, कुछ विश्वासी सोचते हैं शैतान इतना बड़ा है, हम क्या कर सकते हैं, प्रभु शैतान कर रहा है। Some believers think the devil is so big, what can we do? He is doing everything. बाइबल ने क्या कहा, जब तुम उसका, बाइबल ने ये नहीं कहा परमेश्वर उसका सामना करे, क्या बाइबल ने कहा परमेश्वर उसका सामना? Did the Bible say God will resist him? परमेश्वर सामना करता और भागता तो एक बात थी, प्रभु ने कहा जब तुम भी सामना करोगे तो भी दुम दबा के भागेगा। If God resisted and the devil fled, that would have been a normal thing. But he says, when you will resist him, the devil will still run. यानी अगर आप उसका सामना नहीं करोगे तो नहीं भागेगा। If you will not resist him, he will not run away. एक आंटी जब हम प्रभु में नए नए आए थे तो हमें वचन सिखाया करती थी और हम बहुत कुछ सीखे उनसे। और वो अपने 70s में थी उस समय और एकदम हेल्थ में भरपूर थी, और अगर कोई भी सिम्टम आता था ना तो हमें कहती थी, मैं शैतान को बोलती थी खड़ा हो मेरे आगे, खड़ा हो, तेरी हिम्मत कैसे हो गई मेरे में ये लक्षण डालने की, तेरी औकात नहीं है मेरे शरीर को छूने की। The auntie who taught us the word when we were growing up, she was in her 70s and full of life, and she shared how if a symptom comes into her body, she will tell the devil, stand here, and she will rebuke him and tell him, you have no authority to give me this symptom. Amen. Devil cannot put any sickness on you that you do not accept in Jesus name. शैतान आपको कोई भी बीमारी नहीं दे सकता जो आप ग्रहण नहीं करना चाहते हो। कोई आपके पास गिफ्ट लाए, क्या गिफ्ट, क्या मैं लेना ही नहीं। If someone brings a gift for you, you say, I don't want it. अरे लो No, चाहिए, take it. No, I don't want it. क्रेडिट कार्ड देते हैं जबरदस्त, ले लेते हो क्रेडिट Credit कार्ड, card. अरे सर बहुत अच्छा, अबे नहीं चाहिए Oh, भाई it's a very credit good credit card. Take it. card। अरे ले Take लो it. बहुत अच्छा है, Oh, नहीं take it, चाहिए। take it. No, I don't want it. वो बेचने की कोशिश कर रहा है, आप नहीं लेते, They are selling तो you मत want लो it. जो बीमारी वो दे रहा है, बोलो लेनी नहीं है, So don't यीशु take- के नाम में नहीं लेनी। Don't take the sickness the devil is trying to give. Say, I don't want it in Jesus' name. देखो हर जगह वायरल चल रहा है, थोड़ा सा फीवर ले Oh, लो, everybody has viral. You also सा take a little bit viral. सबको हो रहा है, तुम भी ले, भाई Everybody's नहीं taking- चाहिए, also- नहीं No, लेना, I don't want it. I don't want it. थोड़ा सा खसरा ले लो, अच्छा थोड़ा, सबको बीपी हो रहा है, तुम भी ले लो थोड़ा Everybody सा। has BP. You also take a little bit. हाँ सोसाइटी में थोड़ा वैसे भी तो ना, सबके पास है, तुम्हारे पास भी है। Yeah, it should be like everybody in the society has it. बोलो You also have. शैतान अपने Tell him. घृणित हाथ हटा और भाग मेरे जीवन से। Tell him, devil, take your filthy hands off of my life and run away from here. You are people of authority. आप अधिकार पाए हुए लोग हो। Amen. Hallelujah. याद रखना क्या बाइबल ने कहा था, रेजिस्ट द डेविल से पहले क्या था, God gives abundance of grace, more grace. Hear this. More grace empowers you to resist the devil. But you will resist the devil. और ज्यादा अनुग्रह आपकी मदद करता है शैतान का सामना करने में, लेकिन आपको सामना करना होता Hear है। this. Grace will not do it for you. Grace will do it through you. अनुग्रह आपके लिए नहीं करेगा, आपके द्वारा करेगा। एक परमेश्वर के दास हैं, उनकी बेटी के शरीर में 42 फोड़े थे, सर से लेकर पांव तक। A man of God, his daughter had 42 boils on her body from head to toe. और वो गर्दन के ऊपर से ड्रेस पहनती थी बिल्कुल नीचे तक, वो अमेरिका में थे, और यहाँ पे पूरे बाजुओं तक, क्योंकि कॉलेज में बच्चे, स्कूल में बच्चे उसको चिढ़ाते थे। And she would cover her entire body from her neck all the way to the long sleeves and everything. और उससे because- पस और खून लगातार, कैन यू इमेजिन 42 फोड़े सर से लेकर पांव तक। And those boils would bleed, pus would come out. और एक दिन वो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, एंड ही वाज कॉट अप टू हेवन। One day he was worshipping the Lord, और वो स्वर्ग में और उठा प्रभु लिए यीशु गए। मसीह सिंहासन में बैठे हैं और प्रभु उससे कह रहे हैं,
कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में जो फोड़े हैं उनको सहता रहेगा? And he sees the Lord Jesus on the throne, and Jesus says, till when will you suffer those boils on your daughter's body? Till when will you allow them? उन्होंने कहा प्रभु मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूं इनसे कि आप मेरी बेटी को चंगा करोगे। 3 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूं आप। He said, Jesus, I have been praying for 3 years that you heal my daughter. यीशु मसीह ने फिर से वही चीज बोली, Jesus मगर इस asked him टाइम again. थोड़ा स्टर्न होके, But this time a little more stern. कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा? Till when will you allow those boils in your daughter's body? वो थोड़ा उन्हें लगा शायद, उनका प्रभु He said, Lord, मैं 3 साल से प्रार्थना कर रहा हूं I have been praying for 3 years कि आप मेरी बेटी को चंगा कर। that you would heal my daughter. फिर परमेश्वर ने कहा, Then again the Lord said, कब तक तू अपनी बेटी के शरीर में फोड़ों को सहता रहेगा? till when will you allow these boils in your daughter's body? अब उनको समझ में आ गया Now he understood. कि ये आंसर नहीं है। This is not the answer. उनका प्रभु आप मुझे बताओ। He said, Lord, you tell me. प्रभु ने कहा जैसे मैंने उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, इन फोड़ों को श्राप दे मेरे नाम से। The Lord said, as I curse that fig tree, start to curse these boils in my name. वो कह रहे मैं वापस आया, He said, I came back. उन्होंने अपनी बेटी को बुलाया I called my daughter. और इस बार उन्होंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु मेरी बेटी को चंगा कर। This time he did not pray to God to heal his daughter. उन्होंने उन फोड़ों से बात करी, He spoke to the कहा boils. यीशु के नाम में शैतान, जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अंजीर के पेड़ को श्राप दिया, मैं इन फोड़ों को श्राप देता हूं और सूखने का आदेश देता हूं। He said, in the name of Jesus, devil, I curse these boils from my bodies, from her body, and I command them to die. क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। Nothing happened. क्योंकि अगर हम उसी समय अपनी आंख, कई मसीह लोग ना मैजिक का वेट कर रहे हैं, मैजिक कि किसी ने बोला आब्राकाडाब्रा शुरू हो जाए। Many believers are waiting for magic, that they say something and it happens. अगर वचन की घोषणा कर दी, अब अड़िग खड़े हो जाओ। If you have declared the word, now stand steadfast in faith. होगा, होगा, 100% होगा, क्योंकि लिखा है जब तुम शैतान का सामना करोगे तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। It will happen because it is written, when you will resist the devil, he will flee from you. वो खड़े रहे, He kept on रोज standing. परमेश्वर की आराधना करते रहे। Every day worship the Lord. 40वें दिन, On the 40th day. 40वें दिन, On the 40th day. 40 दिन तक क्या था? Till 40 days. 40 दिन तक एक तरह से वो परीक्षा थी विश्वास की। It was like a test of his faith. कई बारी वी गिव अप टू सून। आपने घोषणा करी, रिपोर्ट कराने गए, रिपोर्ट में आया कैंसर और बढ़िया है, अब तो हम गए नहीं। कई बार हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं। You declared, you went to get a test that the cancer has increased, now you give up. No. ये है हमारा टेस्ट, This is our test. हमारा ब्लड टेस्ट, हमारा किडनी टेस्ट, हमारा हार्ट टेस्ट, हमारे लंग टेस्ट, ये है हमारा टेस्ट। This is our blood test, our heart test, our kidney test. This is our test. आमीन। मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, I want to say one thing. आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, For you and for your children. in whatever capacity you can serve the Lord. जिस किसी क्षमता में परमेश्वर की सेवा कर सकते हो। Before this dust goes back to dust, serve God. इससे पहले कि ये मिट्टी मिट्टी में मिल जाए, When you परमेश्वर have की सेवा strength करो। in your body, serve God. जब शरीर में बल है, परमेश्वर की सेवा करो। Okay? आप बाहर जाते हो, When you go outside, आप जानते हैं, ओके आई एम जस्ट मैसेज से थोड़ा अलग जा रहा हूं, बट मैं जस्ट आपको बताना चाहता हूं, बाहर वी नीड वॉलंटियर्स टू सर्व फूड, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो आके गर्मी में सेवा कर रहे हैं, और कई लोग उन्हीं को सुना रहे हैं, अरे ये क्या कर रहे हो। कंधों की जरूरत है भाई, सर्व योर हेवनली फादर, सेवा करो उस परमेश्वर की उसके घर में। we have very few people who are serving in food in the heat of the summer. They are serving, and many people scold them. Come and serve. आज दुख की बात है कि बहुत सारे लोग अपनी सेवा कराने आते हैं, पर कम विश्वासी हैं आज जो सेवा करने वाले हैं उसके घर में। The sad thing is, many people come to be served, but there are very few believers in the house of God who want to serve Him. सेवा करो, Serve Him. do the best you can. जो कर सकते हो सर्वोत्तम वो करो उसके लिए। बाल्टी उठा सकते हो,
Can you pick किसी up a को bucket? खाना देने के लिए बाल्टी उठाओ, Can you serve food to someone? चेयर लगा सकते हो, चेयर लगाओ, Can you put chairs? किसी Do को that. लिफ्ट में घर छोड़ सकते हो, घर Can छोड़ो. you drop someone back In home? your Do that. capacity, whatever you can do, serve God. आपकी ताकत में, आपकी क्षमता में जो कुछ आप कर सकते हो परमेश्वर के लिए वो करो, उसकी सेवा करो. Amen. And there's a beautiful promise. और एक खूबसूरत वायदा है. Do you know, अगर लिखा है तो पकड़ लो उस पर जड़ बना लो. अब जानते हो, if it is written, take hold of it, put your roots in that. इसीलिए वचन हम इसलिए नहीं पढ़ते, ओहो पास्टर जी आज मैंने 10 चैप्टर पढ़ दिए, क्या करें उन 10 चैप्टर का? We don't read the word, oh pastor today I read 10 chapters, what to do with that? It's not about 10 chapters. बात 10 चैप्टर पढ़ने की नहीं It's है. परमेश्वर की प्रतिज्ञा को पकड़ के, faith comes by hearing. जब आप वचन में लगातार बने रहते हो तो विश्वास में उड़ते जाते हो. It is to grab hold of the promises of God. When you are steadfast in faith, you will keep on flying in faith. Okay, so God promises you and me that God will fulfill the number of our days. परमेश्वर ने आपको और मुझे वायदा दिया है कि वो हमारे जीवन के दिनों को पूरा करेगा. कई बोलते हैं पास्टर आपने तो कहा ये लिखा है, तो Some say, Pastor, you said it is written. मैंने बोला मैं चीफ मिनिस्टर बन जाऊं दिल्ली का, मैं तो बना नहीं. I said I become the chief minister of Delhi. लिखा है I didn't बाइबल में become- प्रतिज्ञा कि तुम चीफ मिनिस्टर बनाऊंगा मैं तुम्हें दिल्ली का. Is that a promise in the Bible that I'll make you chief minister of Delhi? नहीं लिखा ना, No, it doesn't. तो वो उस पे खड़े हो जो लिखा है. So stand on what is written in His word. क्या लिखा है? What is written? प्रतिज्ञा है The कि promise is मैं तेरे जीवन के दिनों को पूरा करूंगा. that I will fulfill the number of your days. पकड़ लो उस प्रतिज्ञा को. Grab hold of this promise. अपने पड़ोसी को बोलो, Tell your तुम neighbor. समय से पहले जाने वाले नहीं हो. You will not go before your time. हाँ? But hear this. सुनिए, A blessed life is not just about the number of days, it's also about the quality of life. एक ब्लेस्ड जीवन सिर्फ दिनों की गिनती के बारे में नहीं है, लेकिन किस श्रेणी, किस तरह के आपने दिन जिए उसके बारे में भी है. Don't be a couch potato. One channel, two channel. टीवी चैनल के बीच में फ्लिप करते हुए जिंदगी ना काटो. No. Couch potato को हिंदी में क्या बोलेंगे? सोफे में बैठा हुआ सोफे आलू. का आलू. सोफे में बैठे हुए आलू मत बनो. Don't be a couch potato. परमेश्वर की सेवा करो. Serve the Lord. In your capacity. अपनी जितनी क्षमता है उसके अनुसार उसकी सेवा करो. Okay? And there is a beautiful promise. एक खूबसूरत वायदा है. Put Exodus 23:26. It says, you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread and your water. I will take sicknesses away from the midst of you. No one will suffer miscarriage or be barren. I will fulfill the number of your days. तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना, उसकी सेवा करना, और वह तेरे अन्न जल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा. तेरे देश में ना तो किसी का गर्भ गिरेगा और ना कोई बांझ होगी, और तेरी आयु, तेरे जीवन के दिनों को मैं पूरा करूंगा. बोलो मेरी आयु, मेरे जीवन के दिन यहोवा पूरा करेगा. Say, my Lord will fulfill the number of my days. Amen. You can be seated. क्या हम सीख रहे हैं कुछ? Are we learning anything? See, unless we learn to apply, जब तक हम लागू नहीं करेंगे जो हम सीखते हैं. keep going to church, hear a nice sermon, feel good about ourselves, and go home. चर्च जाएंगे, अच्छा सरमन सुनेंगे, अच्छा महसूस करेंगे अपने बारे में, घर जाएंगे. No. नहीं. शैतान धूर्त आदमी है, वो लात मार के ही निकाला जाएगा. The devil is crooked, he has to be kicked out. And you cannot create tenacity if you are seeking sympathy. और तब तक आप हिमाकत नहीं लाओगे, साहस नहीं लाओगे उस तरह का, जब तक आप दूसरों से सांत्वना ढूंढ रहे हो, दया ढूंढ रहे हो.
मैंने तो व्हाट्सएप में भी स्टेटस डाला था, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती। Oh, I had put a WhatsApp चर्च status. में से किसी ने मुझे मैसेज नहीं करा, सब ऐसे ही होता है, फैमिली फैमिली करते हैं। Nobody messaged me from the church. They say family, family. तो ये संडे को टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम 3 घंटे आपको सिखा के। जो सिखाया है वो लागू करो भाई अपने जीवन में। So are we wasting time here teaching every Sunday 3 hours? What we have taught you, apply that in your life. हाँ, कोई नहीं आया मिलने। Nobody came to meet me. आता कोई मिलने तो चंगे हो जाते। If somebody came to meet you, would you have been healed? Church, we have to stop seeking sympathy and start seeking the word. हमें सहानुभूति खोजना बंद करके वचन को खोजना शुरू करना है। ऐसे भाई बहन ढूंढो कलीसिया में जो आपके साथ खड़े हैं। Find such brothers and sisters in church who are standing with you. वो नहीं जो कहे हाय ये क्या हो गया बहन जी, Not those who will say, "Oh, what happened to भाग you?" जाओ उनसे। Run away from such भेज people. देंगे आपको कब्र में टाइम से पहले। They will send you in the grave before your time. अरे बहन जी, हाँ Sister. हाँ, आजकल ना बहन जी बड़ा चला हुआ है ये बहन जी। Oh, yes, बोलो it's बहन जी निकल लो आप साइड। Tell them get away. ऐसी बहन जियों से दूर रहो। Tell such sisters go away. विश्वास वाले भाई जी और बहन जी ढूंढो कलीसिया में। Find such brothers and sisters who are full of faith. Amen? ओह, क्या हो गया आपको? Oh, what happened to you? बोला शैतान हट दूर मुझसे। Tell him, devil, get away from me. सच बता रहा हूं मैं आपको, I'm telling you the truth. ऐसी बन के आएगा आपका शुभचिंतक That's how he और will डाल come देगा to you. आपके अंदर बीज। हाय हाय, पता है वो शर्मा जी के लड़कों को भी ये हुआ था, मर गया 10 दिन में। That's how the devil will come to you as somebody who cares for you. You know, Sharma ji's son also had this. He died in 10 days. बोला शैतान लिखा है दीर्घ आयु से मेरा परमेश्वर मुझे ब्लेस करता है। Tell him, devil, it is written, my God has blessed me with a long life. Amen? अगर शैतान पतरस के द्वारा बोल सकता है यीशु मसीह को, If devil could speak through Peter to talk to Jesus, और जीसस ने क्या बोला? what did Jesus say? शैतान He said, devil, पुटले get thee behind me. मेरे यहां से निकल, मेरे पास से हट जा। Be very careful who are the people speaking to you. बहुत ध्यान दो कौन लोग हैं जो आपसे बात करते हैं। विश्वास बनाने वाले या विश्वास को नाश करने वाले? Faith builders or faith destroyers? Come on. I'm telling you, many times people don't understand the value of these messages. मैं बता रहा हूँ कई बार लोग नहीं समझते ऐसे संदेशों की जो कीमत है उसको। चलो वीजा लग रहा है, ओह हालेलुया। You'll say you're getting a visa, they'll start to jump. अगर ये हम सीख गए If we learn this, तो आप ये आयत मैं प्रार्थना करता हूँ हम सबके जीवन में पूरी हो। As for me and my household, we will serve the Lord. मैं और मेरा घराना मेरे परमेश्वर की सेवा करेंगे। Amen. बोलो मैं और मेरा घराना मेरे परमेश्वर की सेवा करेंगे। Say, me and my household will serve the Lord my God. और करेंगे क्यों भाई? करते हैं। Not just we will, but we serve Him now. Amen. I want you to imagine, एक सोचो कैसा जीवन होगा आपने यीशु के साथ एक जीवन जिया जिसमें आप अंत तक उसकी भलाई उसकी करुणा की एक गवाही बने कई लोगों के लिए। Imagine the kind of life you would have lived where you became a testimony of God's goodness, His mercy to many. एक विश्वास के योद्धा की तरह आपने आखिरी तक लड़ाई लड़ी, Where you lived, अपनी रेस को पूरा किया। where you fought as a warrior of faith and completed your race till the end. और इमेजिन करो आप आखिरी दिन में हो और प्रभु ने आपको बता दिया बेटा तेरे घर आने का समय है। And think about the day when the Lord tells you this is your last day, it's time for आपने you to पूरे come home. परिवार को बुलाया, You called your entire family. जैसे जेकब ने ब्लेस किया आपने अपने बच्चों को ब्लेस किया और आपने कहा पापा का घर जाने का समय है, मगर दुख और रोने के साथ नहीं, एक सेलिब्रेशन के साथ हम अनंत के घर में प्रवेश कर रहे हैं। As Jacob blessed his children, you will say it is time for dad to go home, but not in weeping.
In celebration, I'm entering in that house. एक मेरी बात याद रखना, Remember one जब thing. आप एक सच्चा परमेश्वर के साथ जीवन बिताओगे अभी, When you live a truthful life with God now, as your days pass by and as you keep getting older, it will keep getting sweeter. जब आपके दिन बढ़ते जाएंगे, आपका जीवन और मिठास से भरता चला जाएगा. You'll not be afraid of dying. आप मरने से डरोगे नहीं. You'll be waiting. आप When इंतजार will करोगे. I meet my heavenly Father? कब मैं अपने स्वर्गीय पिता से मिलूंगा. Amen. So I'm telling you, while we are alive, जब हम जीवित हैं, cherish this beautiful gift of life that God has given us. ये जो खूबसूरत गिफ्ट है जीवन का जो प्रभु ने हमें दिया है, उसके कारण आनंदित हो. आप जानते हैं, लोग आज कहते हैं व्यभिचार, वो तो है ही, व्यभिचार गलत है, पियक्कड़पन गलत है, वो नहीं करना चाहिए. No doubt, मगर adultery- उतना ही गलत कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना भी है. No doubt, adultery is bad. All those things are bad, and no one should do them. क्या किया यीशु ने हमारे लिए? But equally bad is grumbling and complaining. What has Jesus done for us? मैथ्यू, Matthew, Marcus, ल्यूक Luca, और जॉन. Yohanna. पढ़ो यीशु ने क्या किया हमारे लिए, आपको Read पता लग what जाएगा. Jesus did for you. You'll find out. और इतना किया And did so कि much करोड़ों साल भी अगर धन्यवाद करते रहेंगे तो कम है उस यीशु के लिए. that if you thank Him for billions of years, it is still less. Amen. Psalm 66:3 और उसके बाद हम प्रैक्टिकल में चलेंगे. भजन 66 उसका 3, and then we'll go to the practical. Hallelujah. Psalm 66:3. Say to God, how awesome are your works. परमेश्वर से कहो कि तेरे काम क्या ही अद्भुत हैं. Through the greatness of your power, तेरी महासामर्थ्य के कारण your enemies shall submit themselves to you. तेरे शत्रु तेरे अधीन समर्पित होते हैं. How does the enemies of God submit to him? परमेश्वर के शत्रु कैसे समर्पित होते हैं उसको? When they see the greatness of his power. जब वो देखते हैं परमेश्वर की सामर्थ्य की महानता को. The greatest power वो सब